ਕੋਲ ਬਾਦਲ ਬੇਵੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਲਾ ਪਿਆ ਖਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਲੰਚ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 7 ਵੱਜ ਗਏ ਸਵੇਰ ਦੇ। ਘੜੀ ਖਰਾਬ ਬੰਨਿਆ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਹੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਵੇਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਥੋੜੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਥੋੜਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਈ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਪ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਤਿਉਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਐਨਕ, ਰੁਮਾਲ, ਘੜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਤਿਆਰ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ ਰਾਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਮੇਰੀ ਐਨਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚੋਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਘੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਨਿਆ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਘਰੋਂ ਚੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਪ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਖੁਦ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਬਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਨ ਕੋਈ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਪੂਰੇ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੋਨ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਹੋਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਹੋਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ YouTube ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਲੋਗ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਭੈਣ ਬਈ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਊਗਾ ਬਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਨੇੜੇ ਹੋਏ, ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੌਸ਼ਲ ਓਏ, ਤੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਟ ਪਾਇਆ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਿਓ, ਸਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਆ ਬਈ। ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਈਂਗਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਬ్రో, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਆ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾ ਦੀ ਮੇਰੀ। ਤੇਰੇ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੋਰੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਐ ਤੋਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਸਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਲਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਕੇਬਲ ਲੈਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਚਲਾ ਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਟਾਈਪ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਰਜਰ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਟਾਈਪ ਸੀ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹ। ਤੂੰ ਲੈ ਓਏ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਰਜਰ, ਉਹ ਟਾਈਪ ਸੀ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਾਰਜਰ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ USB ਕੇਬਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਡਾਪਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਪ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਸਕੂਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹਟਾਈ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਖੜਾ ਦੋ, ਪਰ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕੀੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਸੀ ਜਲਦੀ। ਚੱਲ ਜਾ ਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੜਾ ਕੇ ਆਓ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ। ਜਾਓ ਖੜਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਹੈ ਜਾਓ ਖੜਾ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰੇ। ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜੇ 4 ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫੇਰ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ। ਉਹ ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੜਾ ਆਂਦੀ ਆ ਗਲਤ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚ, ਆਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਚਲਾਣੀ? ਉਹ ਹੁਣੇ ਐ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ।
ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਨਕ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਐਨਕ ਐ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਗਾਰੀ ਹੈ ਬਗਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਬਗਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਬਗਾਰੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਚੱਲ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਘਰੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਖੜਾਇਆ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਆ ਓਏ ਹੈ ਜਾ ਕੇ क्या हाल चाल है भाई? गुड ना भाई, कोई मोटिवेशन लाइन जो तू बोलना चाहेगा? ਬਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। क्या ही बात है भाई। ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ। भाई पल्ले मेरे कुछ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਬਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨੇ ਸੋਇਆ ਕਰੋ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਿੱਧਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਜਾਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਚੋਰ ਚੋਰ ਫੋਨ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। आया बैठ तू भी लेटो को इधर सजना। हम तो ऑलवेज रेडी रहते हैं भाई। 1 मिनट 0.5 पे कर ले कैमरा। सिविल हॉस्पिटल लाने नेड़े बगुआ साले दा। ओए मैं आंधी टांग घड़ी चला देने हैं। ਸਾਡੇ ਨੇ ਲਾਜ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ साला देखियो। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, हुणे आ जाएंगे यार। तो होता क्या है ना भाई, देखा तो कि मैं देख के जाया सीगा, पर डरना नहीं, डरना नहीं है। मोटिवेशन लाइन इसके पे क्या लिखी थी? वो मुंह से कैमरा बाहर देना है। पीछे बैठा बहुत था, मुझे कैमरा जा रहा है भाई दे बोल। तो भाई साहब पार्किंग का शाम को नहीं पता था कि 4 बजे खुली होगी या नहीं, तो हम लोग एक सेफ साइड रहने के लिए इधर आ गए हैं और 8-10 हो गए हैं। भाई मैं पहले ही आई ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। भाई मैं तो क्या सीगा कि भाई मेरे घरे ला दो पहले ही, ठीक है। साले ने मैंने ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਟਿਵਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫੇਰ ਪੈਦਲ ਆਵਾਂਗੇ। What is this man? What is this? भाई तूने शायरी क्यों लिखी थी? ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਕਈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਬਣਦਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਿਆਮ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਰਣਵੀਰ ਲਵਾਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਭਾਈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਯੋਗ तुम देखा था देखा तो तूने है भाई, मान जा। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾ लैग के नहीं देखा। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਉਹ। चल कोई नहीं, सारे लड़के जैसे नहीं होते। ਕੌਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ एक बार और भाई। सारे लड़के जैसे नहीं, कुछ कौन से जैसे नहीं होते हैं। ਹਾਂ भंड कहीं ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਬਈ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿ ਹੋਪ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਐਂ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਬੈਠੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਨਾ ਦੇਖ ਲੈ ਹੈਨਾ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਲਿੱਪ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਡਾਲੀ आपको ब्लॉग में ला सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं हैं ਉਹ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। बस ठीक है, ऊँ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। YouTube ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, 100-150 ਬੰਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜਾ ਕੇ। हम तो कम 8-10 टाइम खत्म हो गया। छोटे मोटे यूट्यूबर है, छोटी मोटी वीडियो बना लेते हैं भाई। 200 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ 200 ਕਿੰਨੇ 1000 ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਇਹਦੇ ਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। बा ब्लेजर किंदा मांग के आए हैं। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ रुक जा ਆ रुक जा रुक जा ਤੇ ਆ ਸ਼ਰਟ ਇਹ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਪੈਂਟ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਬੈਲਟ ਐਲਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ 400 ਦੀ। ਆ ਕਾਈਡ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰੀਦਿਆ ਜੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘੁੰਮਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਪਾਦੀ ਖਾਣਾਗੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਡੇਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ। ਨਹੀਂ ਆ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਓਏ? ਹੈ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਮੁਰ ਕੇ ਨਾ ਰਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ भी नहीं है। ਇਹ ਫੋਨ ਤਾਂ इसमें पता क्या लिखा, अगर तुम मर मुर आ गए तो इनकी जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है। चल ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮਨੂਸ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਡਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ।
कितने लग गए इससे नहीं एक क्वेश्चन नहीं कਢਾਏ ਤਿੰਨੋਂ ਨਾਲੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਇਹ ਛੋਟ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਮ ਭਰ ਦਈਏ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਆ ਬਈ ਬਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਰੂਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਈ ਲਵ ਰਜਿੰਦਰਾ ਤੇ क्यों मैडम तो डर लगता तेन तू साला पहला ब्लेजर पा अपना तो मैं बताना चाहूंगा अभी हम कॉलेज में आ चुके हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे को देख रहा है कौन नहीं तो हमारे साथ वाले यहाँ पर खड़े हैं बोला था कि 8 बजे निकलना है नहीं यहाँ पर 9 बजने वाले हो गए क्या रिव्यू आपके टाइम पे चलना टाइम पे चलना ग्रुप में मैसेज आई ਜਾਂਦੇ ਆ टाइम स्टूडेंट्स टाइम पे पहुंचो स्टूडेंट कौशल टॉक अबाउट सम स्टैंड ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ स्टैंड किसी का भी नहीं है ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਊਂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਦੇਣਾ ਹੈ भाई कहता स्टैंड साइकिल ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਯਾਰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ बहुत खराब है यार ਤੇ ਬਣਾ ਹੈ ਬਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਣਾ सही गल है ਨੀਤ ਮੈਂ ਵੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੌਰ ਬੋਲੇਗਾ ਜੀ और नहीं कौशल ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੰਨਾ ਹਾਈਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ऑडिटोरियम से जा रहे हैं ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਦੋ और नहीं हाँ इंट्रो बस हो चुके हैं अभी हम यहाँ से निकलने वाले देखते हैं क्या और मेन चीज है यहाँ पर खाना कि खाना क्या मिलने वाला है हमें तो यहाँ पर भगाया जा रहा है तो हम भागने जा रहे हैं वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग ਅੱਗੇ ਬੋਲੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ हेलो गाइस हियर सानिया गोयल वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग चलो आज प्राइवेट है और हमें सीट जाके जल्दी लेनी आ रही तो भाई थोड़ा सा उधर हो गए भाई अरे तुम हमारे टीम में इतने मेंबर नहीं हो भाई तुम उधर हो पहले वही मुंह पर उधर हो जा भाई ओ यार कल भी आई रुक ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਠਾਣਾ ਹੈ एंड पे बिठाना ही नहीं बिठाना ही नहीं सारी सीटा अपनी है 6 सीट ना हो तेरे फेस से नहीं तो पका तो बैठ है भाई तुम क्या खाते हो तुम्हें क्या लगता है वहाँ पर जाके क्या हो क्या एक्सपेक्टेशन है तो टाइम ते निकले ही नहीं मेरी तो घड़ी भी खराब है अभी देख 5 बजे होंगे है मोटिवेशन लाइन maybe not today and maybe not tomorrow and maybe not the next month तुम्हारी कभी बारी नहीं आएगी यही है मोटिवेशन लाइन जब तक तुम स्टार्ट नहीं करोगे भाई कौशल भाई तेरा कोई मोटिवेशन लाइन वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच तुम्हारी कोई मोटिवेशन लाइन पहले ही कौशल ने पहले कह जरी मैं लाइन बोलने लगी थी यार ए चेप्पा मार दे तो तो आप बोलोगे कोई मोटिवेशन लाइन ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ये भाई थोड़ा नया था कि गाला आती है ये थोड़ा नया था हमारे लिए अम्मा बहन भी आ जाऊंगी मैं अम्मा बहन अम्मा बहन भी आ जाऊंगी चल ओए ओमनी तो हुआ क्या ना हमको कॉलेज में बुलाया गया तो सारे तो हुआ क्या ना कि हमें बुलाया गया था कॉलेज में क्या हुआ कि इन्होंने बोला जाना मैं सेमिनार पे तो हमें जाना ही था लेकिन 200 रुपये एक्स्ट्रा भरवाए तो उसका वही दुख हमें बहुत ज्यादा है क्योंकि अगर वो हम 200 रुपये खाटू श्याम में जाते हैं हम प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं अपनी श्रद्धा पूरी करते माना की शक्ति को पूरी किया लेकिन फिर भी श्रद्धा पूरी करते एंड वन मोर थिंग क्या माधुरी दीक्षित करता हूँ भाई माधुरी दीक्षित इज द वेरी ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ बड़ी सोहनी है भाई वो ਬੱਸ ਰੁਕੂਗੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਲੇ माधुरी दीक्षित ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਰੁਕੂਗੀ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਲਈ भाई रिफंड मिलूगा आई माँ ਲੈ ਲੈ ਬਈ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਵੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣੀ ਭਰ ਲੈ ਬਈ ਬਣ ਕੇ ਲਿਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਵਿਊ ਮਸਕ ਨੂੰ ਆਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪ ਦੇ ਭੋਰ ਦੇ ਨਾ ਚਾਰ ਬਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇਣ ਚੱਲੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਈ ਸੰਜੇ ਦੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਮੈਂ ਇਸका कहना यही है ਲਿਆੜੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਸਤਵ ਦੇਖੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੀਦਾ ਉਹ
बाबा ने आप देख कर आया भी बिजनेस की बात ये करता थोड़ा है। आईडी कार्ड जैसा कुछ है, लेमिनेशन शीट ये देखो इन्होंने क्या है। ये थोड़ा सा काट दिया बस, इसके अंदर डाल के इंसर्ट करके देन हमें एक रिबन दिया जाएगा जो हमें गले में डालना है। कार्ड बन चुके ने भाई ਇੱਥੇ ਰੈਡੀ ਪਾਈਆਂ ਰਿਚ ਪੱਟਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲੰਚ ਦਾ ਪਾਸ ਬਈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਈ ਭਰਾਵਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। खाती है और सामने केला पे खा क्यों नहीं रहा बताता हूँ क्योंकि ना हाथी टीवी में था और केला घर पे तेरा था। भाई उधर है क्या जब जिन्ना का फोन आया सी उन्होंने वो नहीं करनी रिस्पांसिबिलिटी अच्छा रिस्पॉन्स है सीरी से एवरीवन टू कम एज आदेश यूनिवर्सिटी ग्रुप क्या मेरे फोन में सेट हो गया, बादल का नंबर देना तो उससे देखी की होगा, बादल बेवड़ा होगा या भेजा होगा। ऑल बादल बादल बगे हे सीरी कॉल बादल बेवड़ा। और ये अभी मेरे को फोन आएगा भाई Calling Badal Bevda Mobile. ਤੇ ਹੋਗੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਖਾਲੀ जीपीएस कैमरा डाउनलोड ਉਹ ਮੈਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ एक एप्लीकेशन कैमरा ये पर्सनल बात है वगैरह सारी चीजें पता लग ਇਹ ਚੱਲੇ ਭਈਆ ਦੇਸ਼ ਯੂਨੀ ਅੰਦਰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ माफ कर देना तुम कैमरे में, लेकिन हम ब्लॉग में आ रहे हैं। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵਲੌਗ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਗਿਆ ਸੀ हाँ ਵਲੌਗ ਚਾਲੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣ ਗਿਆ ਸੀ नहीं ਏ ਭਾਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਐਸੇ ਆ ਭਾਈ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੱਲ तू कल ही सी ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ गाइस वो फोटो खींच रहे हैं हमारी ग्रुप की, तो सब ग्रुप में खड़ जाते हैं। आ जाओ खींच गई तो वही फोटो हो चुकी है ये थोड़ा ये स्क्रिप्टेड था भाई कैमरा एप्लीकेशन है बस। GPS is a camera application. When you click any picture, location and time is mentioned on this picture. Right, bro? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ भाई जी ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨ ਤੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਇਲਟ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਈ ਕਰੀ ਨਾ ਹਲੇ ਓਏ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੜੀ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਉਧਰ ਘੁਮਾਓ ਉਧਰ ਘੁਮਾਓ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਧੋਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਬਈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई स्टैंड नहीं। ਇਨਕਾ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੰਨੀ ਘੈਂਟ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਓਏ ਓਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੇਜ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜੇ ਮਿੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕਿ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਵਾਲਾ ਬਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੋ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਹੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੋਈ ਮੋटिवेशन ਲਾਈਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਨਰਵਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਹੈ चेयर से ऐसी बैठे ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ सही ਚ तो भाई अभी हम जा रहे हैं बकचोदी करने तो चलिए ठीक है क्योंकि बकचोदी करे बिना हमसे रहा नहीं जाता सही बात है भाई सॉरी ब्रो थोड़े सीट चेंज कर रहे थे आगे जाएंगे भाई आगे बैठना हाँ कितना आगे बैठना बिल्कुल आगे बिल्कुल आगे बैठना है जगह बना देते हैं यार क्या बना दो भाई आया ब्रो हो गया इंतजाम तो भाई अपनी स्पोर्ट ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ कोई नहीं ब्रो वेट एंड वॉच तेरी लाइन को ये सब क्यों दिया गया है हमें यहाँ पर वैसे को तो क्वेश्चन वो आस्क करना हो जो उसके लिखने के लिए दिए गए हैं, पर हम इसका क्या करेंगे ये बताओ हम सोच रहे हैं हमें ना खुंदगाई पे इन पर सोच रहे हैं हम शायरियाँ लिखें इन पर, शायरियाँ तो हमारे साथ ये इनको भी लिखनी आती है, हम लिखेंगे दोनों बैठ कर शायरियाँ लिखेंगे। पर डर इसको बात का है अगर इन्होंने बाद में ये कॉपी और पेन वापस ले लिया तो क्या रिएक्शन होगा इनका आप बताइए। रिएक्शन भाई जे उन्होंने वापस ले लिया ऊपर मैं अपने पेज का नाम पाऊंगा पहले तो यूट्यूब का इंस्टाग्राम का जो वापस लेता उन्होंने पता लगे भी इन्फ्लुएंसर आए थे ठीक है तो ब्रदर अपने पेज का नाम पा दूंगा मैं अपने पेज का नाम पा दूंगा यूट्यूब अपने हुनी शुरू किया है बट इंस्टाग्राम से मैंने बहुत जाने जानते हैं ऑलरेडी तो सही है नाम पा देंगे पर इतने शायरियाँ लिखने का स्वाद अलग ही आऊगा क्योंकि
ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਏ ਆ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਏ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2-4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੋਊਗੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਨੀ ਇਨਕਮ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਇਨਕਮ ਉਧਰੋਂ ਆਊਗੀ। ਸੈਕੰਡ ਬ్రో ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਇਨਕਮ ਇੱਥੋਂ। ਥਰਡ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਿੱਤੇ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 200, ਕਈ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 500। अभी आरती हो रही है भाई, ये है हमारी हिंदू परंपरा। Very good afternoon, ma'am. Myself Pawan Yadav, and I am a content creator, self improvement and इंदिरा कॉलेज स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंट जो 3X सी चल पड़ी है ना, एवरीवन वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, एंड एवरीवन वांट टू बी अ मतलब जॉब गिवर इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। एंड मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो लीडरशिप, मतलब लीडरशिप होना ज़रूरी है टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो तो माई क्वेश्चन इज, what are the habits or mindset help you, ma'am, grow as a leader, and how can students develop them early? Good afternoon, ma'am. My name is Sania Goyal. I am pursuing BBA from Government Rajendra College, Bathinda. My question is, ma'am, may you can share an example of a successful change management by you led, especially when cascading it across different types of leadership within an organization. हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा पहले ये बताओ। एक्सपीरियंस तो पूरा बढ़िया, बस स्टेज पे बैठे सब जन देख रहे हैं, देखने की ऐसी ऐसी बात पे ऐसे पवन ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? भुखमरी लगा रखी है। ਆਜੋ ਸਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਇੱਥੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗੁੱਸਾ ਉਧਰ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਹਨੇ। ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖੂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਖੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਕੁਝ? ਕਾਰਡ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਵਿਆਹ ਤੇ आगे बिन भाई छापे ते आया ओए जो है बठिंडा मैनेजमेंट एसोसिएशन के किथे है इत्थे है जनरल सेक्रेटरी साहब तुसी किथे हो? तुसी भी इत्थे हो, बह जाओ। तो मेरा नाम दीपक वोरा है, मैं भारत का सबसे हसीन एम्बेसडर हूँ। और इधर आया क्या कर रहे हो? मैं आपको बांटना चाहता हूँ। जोधपुर राजस्थान का एक शहर है, वहाँ पे एक स्कूल है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, ये जो बच्चे हल्के सीखते हैं। आई एम द चेयरपर्सन ऑफ दैट स्कूल। तो हमारी मीटिंग्स होती हैं साल में 2 बार। एक मीटिंग में मैं गया था, 5 साल हो गए हैं। तो जो महिला मेरे लिए चाय बनाती थी, मैंने देखा उसके दोनों गालों पर दाग थे। मैंने कहा भाई साहब रिस्पेक्ट, भाई साहब क्या हुआ? बोली मैं गिर पड़ी थी। मैं गिरती तो दोनों पे नहीं दाग पड़ते, सच बता। बोली मेरे हस्बैंड ने शराब के पैसे मांगे, मैंने नहीं दिए तो उसने मुझे पीटा। मैंने कहा आपने वापस पीटा? बोली मैं अनपढ़ हूँ, पैसे नहीं है। दैट गॉट मी थिंकिंग। फिर रोटरी क्लब के साथ हमने दोस्ती की, एक बैंक के साथ दोस्ती की, एक डिजाइनर के साथ दोस्ती की, और इन लोगों ने 10 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बनाया where we gave them knitting machines, not sewing machines, knitting machines। हल्के हल्के इन्होंने सीखा, आगे बनाती गई, और आज इनके प्रोडक्ट्स अमेज़न पे बिकते हैं। और एक महिला महीने में 30 और 40 हजार रुपए के बीच में कमाती है। जब उन्होंने मुझे ये बताया तो मैंने पूछा कि आपके पति आपको अब ठोकते हैं? बोली अब तो हम ठोकते हैं। फाइनल नहीं है बेटा, ये भारत बन चुका है। So may I request you, Mr. President of Bhatinda Management Association, तो ये हमारी जोधपुर की बेटियों ने आपके लिए बना के ये आपको प्रयागराज से। मिस्टर जनरल सेक्रेटरी आप कहाँ गए? अरे आप यहाँ बैठे। मैंने सोचा आपको भूल गया था, आप भी कहीं मत जाइए। And this, you won't believe it, is being sold like anything. This is actually both a gamcha and a towel. You can have a shower with this. आ गया यार टाइगर समझ में लगता है फोटो का। हाँ इधर करते टाइम चलो हो जाए शुरू। थैंक यू। अरे कितने गए साडे वकील साहब? वकील साहब तुसी इत्थे आओ। कितने गए? थल्ले आओ। And this is actually blessed by the Rishi who guided us in Prague. Thank you. अच्छा जी हूँ शुरू करी। कितने क्या मेरा रिमोट इतने कितने रखे सी पिया होना कितने ना कितने। देखा मेरी जेब से नहीं है, टेबल से रखे नहीं है इतने ना लिया।
अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੰਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਜੀਮੇਲ ਵੀ ਆ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ स्टैंड अप कॉमेडी ये बढ़िया था भाई। चलिए जी स्लाइड को हमारा शुरू करिएगा पहली स्लाइड दिखाइए और जल्दी से करिएगा ताकि हम जल्दी से समाप्त कर सके गुड। तो आज हम बात कर रहे हैं जम्बावन इफेक्ट की। इसकी मैं आपको कहानी बाद में बताऊंगा कौन थे लेकिन ये है कि जो नया भारत है प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अस दिस मिशन मैं यहाँ पहनता हूँ 2047 टू बी अ डेवलप्ड कंट्री उन्होंने लाल किले से अनाउंस किया था और फिर पूछे कि क्या भारत को विकसित बना दोगे बाय 2047 ये एक राजदूत का वादा है 2047 से बहुत पहले आपको विकसित भारत देंगे। अभी क्या कैसा है भारत कभी कभी हमें झलक नजर आती है। जब मैं पहली बार बठिंडा आया था तो बहुत छोटा सा गांव था और अब देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। ये उसको उतार देता हूं खट कर रहा है ये मेरा चीनी माल होगा तभी ऐसे खट कर रहा है। थैंक यू। सो उसमें क्या था कि वी हैव सीन द डेवलपमेंट ये झलक हमको नजर आती है और फिर हम एक गीत गाते हैं। सर क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है इफ फाइन दे कैन सी। चलिए जी वॉल्यूम टेस्ट करो। अब ये हम कहते हैं भारत को कि भाई झलक दिखला जाए और एक झलक अभी हमने पेरिस में देखी है। प्राइम मिनिस्टर को चेयर कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट। अरे भाई दुनिया का नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो अमेरिका है जहां नरेंद्र मोदी अभी गया। नंबर 2 चीन कहता है मैं भी बहुत तेज हूं। टाइगर तेरे को किसी ने नहीं बुलाया भारत को क्यों बुलाया सोचिएगा आपको जवाब मिलेगा क्योंकि उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में फ्रांस के राष्ट्रपति मैं उनको जानता हूं फ्रांस में पढ़ा हुआ उनकी भाषा बोलता हूं उन्होंने कहा 10 लाख इंजीनियर हर साल भारत बनाता है हमें उनकी जरूरत है। ताकत देख रहे हैं आप अपने देश की। हम लोग गायना गए थे नवंबर में। ये गायना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली इनका नाम है। इन्होंने क्या बोला जरा सुनिएगा वॉल्यूम बढ़ाइए। की हो गया India today is a world leader. इंडिया टुडे इज ए वर्ल्ड लीडर। ये मैंने नहीं बोला ये गायना के राष्ट्रपति बोल रहे हैं। हमसे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को यहाँ 5 साल छोड़ जाओ ताकि विकास करें। बस हो गया टाइगर हो गया कि आप हमारे देश का भी विकास करें और हमने उनसे कहा 5 साल तो हम नहीं देंगे 1.5 दिन के लिए आए और शायद 15 मिनट और छोड़ सकते हैं लेकिन हमें भी जरूरत है भारत में उनकी। आप उसको पसंद करें ना करें it doesn't bother me. He does what he has to, we do what we have to. हम लोग सब अपनी सच्चाई में जीते हैं। सर मेरी 2 सच्चाइयां हैं। पहली I'm 73 years young and second I'm still very good looking. इसीलिए सारी मैडम लोगों को मैं क्या कहता हूँ बचना अभी आपसे एक सवाल है उसका जवाब मुझे मत दीजिएगा। आप सबसे एक ही सवाल पूछ रहा हूँ। जो विकसित देश हैं आप यूरोप की बात करते हैं जापान की बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं आप अमेरिका की बात करते हैं साउथ कोरिया की बात करते हैं सिंगापुर की बात करते हैं। इनकी डेवलपमेंट मैडम किसने की थी? चंद्रमा से लोग आए थे आपसे पूछ रहा हूँ। समुद्र से आए थे सूरज से आए थे इनके अपने लोग थे। अगर इनके अपने लोग थे जैसा आप कह रही हैं तो हम में क्या बीमारी है? डोंट आंसर माय क्वेश्चन। दिस इज फॉर ऑल द यंग पीपल। क्या गलती हो गई हमसे? अरे सारी गलती तो गवर्नमेंट की है ना। हाँ जी गवर्नमेंट कौन बनाता है? गवर्नमेंट कहां से आती है? चंद्रमा से। आप लोग बनाते हैं बाहर निकालते हो। दूसरे के ऊपर ब्लेम मत डालिए। अपने गिरबान में झांक के देखिए कि हम क्या गलती कर बैठे हैं। अब मैं आपको ये हल्का सा एक फिर देन विल कम टू द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड शो। ये एक स्निपेट दिखा रहा हूं और सुनिए बड़े ध्यान से। सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे। हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मारेंगे। जो मैंने सवाल ये उठाया
तो मैंने कहा सर हमारा सिद्धांत तो वो है कि आप यहां तमाचा मारोगे, तो मैं कहता था यहां पे भी मार दो ना। फिर साहब ने मुझे समझाया कि वो इंडिया था, ये भारत है, ये मुंह तोड़ देता है। और फिर वो कहानी जो मैंने पढ़ी है, अब मैं आपको बताता हूं जम्बावन कौन था। रामायण एक चीज उसका मूल आधार है कि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को भगा के ले जाता है। गुड आइडिया और बैड आइडिया? गुड आइडिया, अच्छी बात है। फिर जो राजा जिसकी पत्नी चली जाती है वो अपने चीफ जासूस जेम्स बॉन्ड को बोलता है, लब के लिया कितने गए? वो बेचारा लबदा रहता मिल ही नहीं, बड़ा परेशान हो जाता है, बैठा होया अपने रामेश्वरम, ना खांदा ना पींदा, डिप्रेशन चला जाता है। फिर वो पालू आंदा है जिहदा नाम है जामवन। उन्होंने कहता हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना जुनून याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपने आप पे भरोसा कर, कि छलांग लगा के उत्थे पहुंच जाता है। उन्हें पता लग जाए कि एक दुष्ट राजा है, वापस नहीं करेगा सीता मैया। तो फिर कहता मैं ਉਹਦੇ ਘਰ उसके देखा कित्थों हमला करांगे जब जंग होएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ते जान तो पहले नगरी ਨੂੰ आग लगा देता है। पहली बार 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। अब आप समझे मतलब उसका, जब कहा कहते हैं कि हमारा सिद्धांत है, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है, हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्म भरोसा, आज हमारे पास भारत में ये सब कुछ है। आप देखेंगे भाई हमारा स्टॉक मार्केट आपको पता है $5 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 शून्य होते हैं, एक्सीड कर चुका है। और 6 महीने के अंदर $1 ट्रिलियन दुनिया मानव इतिहास में पहली बार। अंबानी एक और शादी करेगा तो $1 ट्रिलियन और बढ़ जाएगा। अच्छा ये बताइए मुझे कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको अपने इनॉग्रेशन पे क्यों बुलाया था? कभी मिले नहीं है दूसरे से, बुलाया क्योंकि अमेरिका के पास क्रूड बहुत है, रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनर कौन है? मुकेश भाई अंबानी। उसको बुलाया कि भाई तू रिफाइन करके मेरी चीज आगे दे। सोचिए इसके पीछे क्या रहा। हमारी तो ट्रेनिंग ये होती है, एक्शन ले लिया, पर क्यों लिया है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। मई अक्टूबर में हम 200 टन अपना सोना इंग्लैंड से वापस लेके आए। तो मैंने रिजर्व बैंक के फॉर्मर गवर्नर से कहा यार टाइगर वहां क्यों रखा हुआ था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी। अरे मेरे बाथरूम में रख लेते, कौन सी बड़ी बात है। हमारी सरकार के पास मैडम, हमारी सरकार के पास 1,000 टन से कम सोना है और आप जैसी महिलाओं के पास 25,000 टन है भारत में। क्या कर रहे हो? लेकिन फिर हमसे कहते हैं कि जी तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है, ये खराब है, वो खराब है। अरे सब कुछ खराब है तो फिर ये अचीवमेंट कहां से हो रहे हैं? अभी हमारे साहब भी बात कर रहे थे अबाउट डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कैसे हो रहा है ये सब कुछ? मुझे 53 साल हो गए इन इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। मैं तो समझ नहीं सकता कि अगर इतना खराब है हर चीज भारत दी तो तरक्की कितों आ रही है। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना। मैं जाके कॉलेज में अपने प्रोफेसर को पीटूंगा अगर जिंदा है कि आपने तो बताया नहीं कि सब कुछ गलत है, फिर तरक्की कहां से हो रही है। अरब लीग, आपने नाम सुना होगा, लीग ऑफ अरब स्टेट्स। 22 देश हैं, 22 एक भाषा बोलते हैं अरबी, हम एक देश है 22 भाषाएं बोलते हैं। ये भारत की ताकत है। मैं अफ्रीका में जाता हूं ना तो वो लोग 2-3 देशों में जहां पे मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, 3 मेरे हस्बैंड्स अफ्रीका में हैं, 2 भारत में, कुल मिला के 5 है। मेरा दूसरा नाम द्रौपदी है। तो जब मैं वहां पे जाता हूं वो मुझे कहते हैं जी देखो मिस्टर एम्बेसडर, हम तो यूरोप की तरह बनेंगे, हम डेवलप होंगे, ये होगा वो होगा। मैं कहा टाइगर तुमने कौन सा रोल मॉडल ले लिया है? यूरोप तो बुढ़ा हो चुका है, यूरोप थक चुका है। डोनाल्ड ट्रंप तो परवाह नहीं करता यूरोप की, एक यूरोपियन लीडर को उसने बुलाया नहीं है। अगर आपको रोल मॉडल चाहिए तो भारत की तरफ देखो। और मैं उनसे क्या कहता हूं, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर। अब आपसे बताया गया है स्कूल में, मम्मी डैडी ने भी कि 1947 में हम आजाद हुए थे। रबिश। 1947 में हमें तोड़ दिया गया था, हम आजाद नहीं हुए थे। हमारी मानसिकता बिल्कुल ब्रिटिश थी, गोरों की थी मानसिकता, सिर्फ मेरा जिस्म आजाद हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध में 1939 to 1945 सर प्रेसिडेंट साहब 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बरकरार रखने के लिए।
25 lakhs, and many of them sleep across the world in cemeteries. They died for the British Empire. हम कॉलोनी थे और 25,000 लोग लेकर ये निकलता है सिंगापुर से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन है असली हीरो? वो जिसने कहा मैं आजादी दूंगा। चल गया। और जिस दिन हमने उसकी मूर्ति को विराजमान किया देश की राजधानी में, मेरा आत्मविश्वास भी आजाद हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, आप तो भारत की शान है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या धर्म है, लेकिन जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई उस दिन। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका क्या धर्म है, वो आपका पर्सनल है। आप बच्चों, सीनियर पीपल, सारे ऑफिस बेयरर्स, मम्मी डैडी लोग, बच्चों आपसे मैं, स्टूडेंट्स हैं आप, भरोसा करो, अपने आप पर विश्वास करो। डरना है तो डर से डरो। किससे डरो? क्योंकि डर के आगे जीत है। नहीं सुना मैंने, कम सुनता हूं। डर के आगे जीत है। किसी ने फकीर से पूछा था कि मैं दुनिया कैसे बदलूं? फकीर बोला पहले अपने आप को बदलो। फकीर का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। याद रखिए इसको। हम लोग जब मैदान में उतरते हैं, हम पीछे भागने के लिए नहीं उतरते। फौजी ऑफिसर्स भी यहाँ बैठे हैं, कर्नल साहब भी यहाँ थे। हम मैदान फतेह करके वापस आते हैं। ये भारत है, ये सिक्खी की ट्रेडिशन है, सर्विस। भारत के रखवाले हैं ये। देश सिवा वर मोहे आई, शुभ कर्मों से कते ना करो। मत डरो अरसियो जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत कर लूं। ये भारत की फिलॉसफी है। मैं जब अमेरिका में था पोस्टेड, तो मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था। मैं पढ़ा नहीं हुआ। वहां पे मेरे एक प्रोफेसर थे, विलियम लोमड़ी नहीं, विलियम फॉक्स, माफ करिए। तो वो इंटरनेशनल रिलेशन का बड़ा एक्सपर्ट था। वो हमको सिखाता था, सर मुस्कुराओ चंगा लग जाएगा। तो वो हमको बताता था कि आपको, उन्होंने पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था 1944 में, सुपर पावर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? बोला सबसे पहले आपको चाहिए, उस समय की वो बात कर रहे थे, दैट यू शुड हैव some kind of intelligence that is beyond the human mind। फिर बोलिए आपको पॉपुलेशन चाहिए, हम दुनिया में नंबर 1 है। फिर बोलिए आपको चाहिए इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेसी। हम तो चाणक्य की संतान है, ये बच्चे हैं हमारे सामने। ऐसा चक्रव्यूह बिछाएंगे, इनको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है इनके साथ। फिर उन्होंने कहा आपकी इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारी टॉप 3 में है दुनिया में। फिर उन्होंने कहा आपकी मिलिट्री होनी चाहिए, टॉप 2 में है। और जनवरी में पहली बार मानव इतिहास में 1 सबमरीन और 2 नेवल वॉरशिप्स एक ही दिन में हमने लॉन्च की हैं। पहले कभी नहीं हुआ मानव इतिहास। अरे हम पागल हो गए, हम बिल्कुल पागल हो गए इंफ्रास्ट्रक्चर में। 34 किलोमीटर सड़क मैडम को एक दिन में बनाता है। हमारा दिमाग खराब है कि हम तो गरीब देश हैं। 34 किलोमीटर पर डे और भाई दिमाग खराब है हमारा। Why should I be doing all this? अरे मैं 8 हवाई अड्डे एक साल में क्यों बनाता हूँ, 2 मेट्रो सिस्टम एक साल में क्यों बनाता हूँ? पागल हो गया नहीं मैं सर? थोड़ी दवाई मुझे दे दो, पता नहीं है क्या हो रहा है। चरस खा के मैं चीजें करता रहता हूँ। सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, और इससे कहीं ज्यादा है। तो जो मुझसे पंगा लेते हैं ना, क्या वार्निंग देता हूँ, ओ पंगा ना लेना, अगर पंगा लिया मेरी माँ भारती की कसम, इतना मारेंगे आप उठेंगे। याद रखिए इस चीज को। हमारा पहला ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। पहला ट्रिलियन जीडीपी 60 साल में, दूसरा हमारा 10 साल में, तीसरा है 5 साल में, चौथा है 2.5 साल में। साहब ने कहा 5 ट्रिलियन जीडीपी कब दे दोगे? 2026 तक दे दोगे। और हम बहुत से एडवाइजर ने बोला सर ये हमारा वादा है, 2025 में आपको दे देंगे, 26 से पहले कर देंगे। हम झूठ नहीं बोलते, हम करके दिखाएंगे उनको। और फिर जो भारत उभर रहा है, आप लोग उभर रहे हैं, ताकत देखिए, ब्रेन पावर सिटिंग ओवर हियर। ये आप लोगों के पास जो शक्ति है, जो ताकत है, दुनिया जलती है, कहानियां लिखते हैं। उनके चमचे जो यहां पर है, वो भी वो क्या है, सोरोस फोरोस, उसके जो
साइड किक है यहाँ पे, वो भी गालियां देते हैं भारत को। और फिर वो क्योंकि आपका मनोबल तोड़ना चाहते हैं, और हम उनसे क्या कहते हैं, अरे चलने दो इन कमीनों को, हमारी पार्टी अब चल पड़ी है, ये रुकेगी नहीं। भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, आप कहते हैं टेढ़ा क्यों है, मुझे बताइए, कुरान में पढ़िए, बाइबल में पढ़िए, गीता में पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़िए, कहाँ लिखा है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। भारत के पुराने नक्शे देखिए, गोल है। दुनिया एक है, हम बांटते नहीं है। इसीलिए तो गोरों के बारे में क्या कहते हैं, आप सबसे मेरा एक अनुरोध है बच्चों, आप सबसे भी, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो, तब आप समझ जाएंगे कि ये देश क्या है। 5000 साल पहले यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था धर्मपुत्र से कि इंसान की सबसे बहुमूल्य चीज क्या है। धर्मपुत्र बोला एजुकेशन। 5000 साल पहले हम एजुकेशन की बात करते थे जब ये गोरे नंगे घुमा करते थे जंगलों के अंदर। आज हमें बताते हैं एजुकेशन के बारे में, कमीने कहीं के। जब मेरा निर्माण हुआ था भारत में 1951 में मैन्युफैक्चर, हमारे पास 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी थे। कितने थे मैडम? 500। आज मेरे पास 60,000 है। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। मैं हर दिन 2 कॉलेज खोलता हूं, मैं हर महीने 3 यूनिवर्सिटीज खोलता हूं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं और 52% हमारी बेटियां हैं। 52% डूब मरो लड़कों, कुड़ियां कितों निकल गई हैं लगे। ये ताकत है आपकी मां भारती की, उसको पहचानिए। यहां पे सर आप जरा इधर आइए, आज जरा पीछे घूम के देखिए, यहां पर कितने स्टूडेंट्स हैं, अब सच कहना झूठ नहीं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। देख लिया आपने? देखिए 6000 डिजिटल ट्रांजैक्शंस हम करते हैं एवरी सेकंड। एक महीने में भारत उतने करता है जितना अमेरिका 3 साल में करता है। 3 इंडियंस ज्वाइन द इंटरनेट एवरी सेकंड। 2 ग्रामीण भारत से हैं। और मेरे पास भी मेरी बेटी है सर, वो अमेरिका में रहती है, तो मुझे कहने लगी कि डैड आप बूढ़े हो गए ना। बुढ़ा तेरा डैड हो गया। मैं कहां से बूढ़ा हूँ? कहती आप अपना नाम भूल जाते हो। मैंने कहा ये तो बिल्कुल सही है। तो उसने फिर मेरे को एक कहती है मैं आपको एक फोन भेज रही हूँ, वो एक ये फ्रूट वाली कंपनी बनाती है, क्या कहते हैं फोन को? एप्पल। शाबाश, बड़े होशियार है सर आप। अच्छा, उसके अंदर एक मैडम रहती है, सिरी। देखो मैं तो भूल जाता हूँ। तो कहती है अगर आप भूल जाओ अपना नाम तो आप उस मैडम से पूछना। ट्राई करो, पूछ लेता हूँ। अगर बता दी, यहाँ पे पता नहीं सिग्नल है कि नहीं है। हे सिरी, हे सिरी, ओए बोल यार कुछ। हे सिरी, व्हाट इज माय नेम? ओ बड़ी होशियार औरत है, सियारे की है। अरे ठहरो सर, अभी पकड़ता हूँ इसको। हे सिरी, व्हाट इज माय वाइफ्स नेम? अबे मुझ वाइफ की बात सर, 48 साल से एक ही पत्नी है सर, वारंटी भी खत्म हो गई है। कभी नहीं कही कि विच वाइफ। कहीं गलती से अपनी पत्नी की प्रेजेंस में मत पूछ लेना कि मेरी पत्नी का क्या नाम है। बीच बन गए ना, बहुत ध्यान रखिए। 2003 से हम किसी देश से मदद नहीं लेते हैं, 150 देशों की हम मदद करते हैं। नो मोर फॉरेन एड, हम देते हैं। और कहीं पे प्राकृतिक इमरजेंसी होती है, नेशनल डिजास्टर, सबसे पहले हम पहुंचते हैं। नेपाल में 2015 में बेटा बहुत बड़ा भूकंप आया था। आज तक वहां पे उसका जो इफेक्ट है वो अभी तक भुगत रहे हैं। बाकी सारे देशों के लीडर्स ने, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जिनको मैं अच्छी तरह से जानता था, उसको फोन करके बोले आपको बड़ा दुख हुआ जी, हमारे आपके साथ शुभकामनाएं और जो भी श्रद्धांजलि। भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। 15 मिनट के अंदर हम प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में मिल रहे थे। 8 घंटे के बाद हमारा पहला जहाज
काठमांडू उतरा विद रिलीफ सप्लाईज और प्राइम मिनिस्टर कहते हैं नेपाल की खुशकिस्मती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर, नेपाल की खुशकिस्मती है कि भारत उसका पड़ोसी है। और इतने अभी फ्रांस में मायोट एक उनका द्वीप है, वहां पे कई हजार लोग एक तूफान में मर गए। फ्रांस को पता नहीं था क्या करना है, किससे पूछा उन्होंने तो मदद करो, हमसे पूछा फ्रांस ने, तभी तो इतनी इज्जत देते हैं हमको, हम पहुंच गए उनकी मदद करने के लिए। ये भारत है सर। 115 साल पहले श्री अरबिंदो ने कहा था कि भारत अब उभर रहा है अपनी रोशनी फैलाने को। भारत की रोशनी भारत के लिए नहीं है, भारत की रोशनी पूरी दुनिया के लिए है। उस समय से हम विश्व गुरु हैं। अरे जितनी गाली देनी है दो, ये सच्चाई श्री अरबिंदो चाइना ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था, उस पर लिखा था वायरस। हमने 200 देशों को भेजा था, उस पर लिखा था वैक्सीन। जाओ जाओ सो मच। हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, 100 देशों के साथ हमने वैक्सीन बांटी। मेरे चाचा, मेरे ताए, मेरे भतीजे, मेरे ससुर है, क्यों दी उनको हमने इसलिए दी बेटा, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देखते। जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आपके पड़ोसी दौड़े आते हैं, दसों जी की मदद करिए। सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? यूरोप में तो पता ही नहीं कि पड़ोसी कौन है, चाहे 50 साल से वहां रह रहे। यहाँ पे सब कुछ हम जानते हैं पड़ोसी के बारे में, क्या खाता है, क्या पीता है, कितने बैंक है, क्या अकाउंट है, सब कितनी बार इनकम टैक्स रेट बढ़ी है, सब पता होता है हम लोगों को। बट वी आर अ वेरी गुड पीपल। 100 से ज्यादा देशों को हमने अपनी वैक्सीन मुफ्त में दी, किसी और देश ने नहीं किया। और आपको पता है कि अमेरिका का एक राष्ट्रपति होता था, फिर से है मैकडोनल्ड ट्रंप, नहीं मैकडोनल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड ट्रंप। उसको मुफ्त में उसने कुछ दवाइयां मांगी थी हमसे, हमने दी। और वो ट्वीट करता है, इंडिया हैज बीन ग्रेट, अमेरिका कभी नहीं भूलेगा। बुर्ज खलीफा दुबई, उनको भी दी हमने दवाइयां, हमारे तिरंगे में रंगा हुआ है। एक अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ the tough get going, right sir? When the going gets tough, the tough get going. एक line add करिए, when the going gets toughest, the Indians get going. लेकिन हजारों हमारे बच्चे, 5,000 डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, they died because they did not have the equipment to protect them. जब पहली बार प्रकोप हुआ था वायरस का, sir, my doctor was 40 years, my family, I was then 70. He died so I could live. ये है इस देश की परंपरा, अपने आप को उसने शहीद किया मेरी जान बचाने के लिए। What can I say to these people? हम सबके दिल के तार छू लेते हैं क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। 2 लाख हाईटेक स्टार्टअप्स हैं, 50% हमारी बेटियां चलाती हैं। These are not unicorns, these are now decacons, 10 बिलियन का। और फिर कुछ लोग इसकी जो देखो कैसे उभर रही है, हमेशा ऐसा नहीं था सर। वी आर सिटिंग इन पंजाब, 65 में जंग हुआ, 66 में बारिश नहीं, मिनी वैसी सर, तुम्हें याद होना। मेरी माँ भारत फटी हुई थी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अकाल था, फैमिली। और उस समय हमारी प्रधानमंत्री वही थी अमेरिका। अरे ऐसा नहीं कहते बेवकूफ को, She was a self-respecting woman. आप वापस आके बोली, अब हम भीख नहीं मांगेंगे, मेरी बेइज्जती की है। आज because of पंजाब, we are the second largest producer of food. हमसे ये भी कहा गया था कि सोमवार को मत खाओ। आपको याद है सर? 52 दिन मैं भूखा सोया हूँ सर, in 1966। मुझसे पूछो भूख क्या होती है। घर में भोजन था, माँ तो कहती थी दीपक खा ले। My father who wore a uniform कहती थी इतना प्यार करता है देश से, ये नहीं खाता। It was an emergency and I did not eat for 1 year on Mondays. 52 days I slept hungry. आप लोग जानते नहीं हैं, हमारी मीडियन एज है 29 साल की। इसका मतलब आधे भारतवासी बच्चों की तरह और मेरी तरह 29 साल से कम है। आपकी तरह मेरी तरह 29 से कम है। और आधे भारतवासी 29 से थोड़े से ज्यादा है। जापान दुनिया का सबसे बड़ा देश, बुढ़ा देश है, 49 मीडियन एज। आधे जापानी 49 से कम है, आधे 49 से ज्यादा है। सर उनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे मेरे बहुत दोस्त थे, उनकी हत्या हो गई, तो वो मजाक मजाक में मुझसे कहते थे
कि एम्बेसडर हमारी पॉपुलेशन घट रही है, हम बच्चे पैदा ही नहीं करते। मैंने कहा हम सिखाएंगे ना, टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ये मजाक होता था उनके साथ, प्योर जोक। और फिर उन्होंने बताया कि पिछले साल बिफोर ही डाइड ही टोल्ड मी दैट जापानीज मदर्स ने पूरे देश में 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे। कितने मैडम? 7.5 लाख पूरे जापान में। अरे उससे ज्यादा तो हम भटिंडा में कर देते हैं। क्या माफ करना, दिस वाज मेंट टू बी अ जोक, डोंट टेक इट सीरियसली। ये देश हबीब जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों। ये आपके लिए था गीत, वीर जवानों का। अच्छा, इंग्लैंड का नाम सुना आपने? हाँ, अरे मेरे बायोडेटा में आपने जिक्र किया था ना, मैंने कुछ फिल्मों में भी काम किया था। हाँ, 2 फिल्मों में काम किया था, दोनों की दोनों सुपर फ्लॉप्स हो गई थी। आगे नहीं मैं बताऊंगा। इंग्लैंड में दे हैव अ मंत्री फॉर लोनलीनेस। इन जापान दे हैव अ मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस। तो इंग्लैंड वाले कहते हैं कि हमारे पास 1 करोड़ लोनली लोग हैं, अधिकांश अमीर विधवाएं हैं, तो हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, भाई उनसे बैठो, बातचीत करो, कंपेनियन बनो। मैंने कहा इंग्लैंड अमीर विधवाएं, मैंने अपनी फोटो भेज दी कि मुझे भी ट्रेनिंग चाहिए। बोले हम अकेले जरूर हैं पर इतने अकेले नहीं है कि तुझे बुलाएंगे कमीने कहीं के। मुझको रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। और बेटा, डेलॉयट एंड गोल्डमैन सैक्स ने जो सर्वे किया आप लोगों का, उन्होंने एक ही चीज कही है कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हैं, और आप दुनिया की सबसे शानदार कहानी लिखेंगे, भारत की कहानी लिखोगे। नहीं सुना? लिखोगे। ये उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा है। और अब मैं आपसे कुछ और कह रहा हूं। कारगिल की लड़ाई हुई थी सर, ये बच्चा फौज में भर्ती होने गया, 24 साल का था, दोनों टांगे कटी हुई थी घुटनों के नीचे, ट्रेन एक्सीडेंट में। उससे कहा गया तू फौज में कैसे भर्ती होगा? क्या जवाब देता है? मैं दुश्मन से लड़ने आया हूं, दुश्मन से भागने में। अरे ताकत देखो इस देश, हर भारतीय दिल में उस शेर को पहचाना। हम गरजते हैं ना, 144 करोड़, हमारे सामने कोई नहीं टिकेगा। ये भूकंप आया था सिक्किम में 2011 में, ये फोटो मैंने की थी। 300 जगह सड़क टूट गई थी, गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी। अरे कब तक आप अपनी जनता को, सिक्किम वाले लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए भोजन दोगे? उस समय प्राइम मिनिस्टर बोले यूरोपीय कंपनियां हैं जिनके पास बहुत तजुर्बा है, माउंटेन रोड में बात करो। हमने बात की, वो बोले 3 महीने पहले हम इक्विपमेंट इकट्ठा करेंगे, 3 महीने में रिपेयर करेंगे, 3 महीने स्टेबलाइज, और इतने $100 मिलियन। कौन वेट करेगा 9 महीने? और जैसे मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपसे बांटता हूं, प्राइम मिनिस्टर समय बोले बॉर्डर रोड्स, आपने सुना है ना नाम बॉर्डर रोड, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, उनसे पूछिए। वो फोन मैंने किया था 2011 टू देयर डायरेक्टर जनरल। उसने कहा कि मैं पहले मुआयना करूं, गुड मिलिट्री ऑफिसर, सीधा नहीं बोलेगा, पहले मैं चेक करूं। और जैसा मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज सुबह मैं गुरुद्वारे में भी था, हम लोग झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कहा कि मैं चेक करके बताऊंगा। सर 19 घंटे के बाद लेफ्टिनेंट जनरल साहब का फोन आया, एम्बेसडर सड़क खुल चुकी है। 19 घंटे के बाद, 9 महीने। हमारे बेटे को देखो कैसे काम कर रहा है, ड्रिल करेगा, बारूद पड़ेगा, बुम फटेगा, पहाड़ पीछे जाएगा, सड़क बनाई जाएगी। वी लॉस्ट 22 of our sons from सिक्किम। कोई उसके पास प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। मैं एक सिक्किमीज घर गया, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू दोबारा कहना है, मैं बताता हूँ। उस माँ का 24 साल का बेटा शहीद हुआ था, वो सड़क बना रहा था, बॉडी वहीं पड़ी थी। मैंने उसे कहा बहन बहुत दुख है, ये 2011 की बात है, पता नहीं वो कहाँ है, बट आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आर्मी से मिलेगा, बॉर्डर रोड से मिलेगा, सिक्किम गवर्नमेंट, भारत सरकार। मैंने अपनी तरफ से चेक की। मैंने कहा मैं और कुछ कर सकता हूँ? कि हाँ, ये मेरा बेटा जो शहीद हुआ है 24 साल का था, एक दूसरा बेटा है 22 साल का, नौकरी लगवा दे। तो दिल्ली जाते ही मैं बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी जितने हैं सबसे बात करूंगा, नौकरी लगवा दूंगा। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा इसको बॉर्डर रोड्स में नौकरी लगा, वक्त आने पर ये भी कुर्बान हो जाए भारत के लिए। कौन सी माँ ऐसा कहती है? मैंने उसके हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और मैंने कहा माँ, अब मैं समझ गया हम भारतवासी क्यों हैं। हम भारतवासी इसलिए नहीं हैं कि हम भारत में बसते हैं सर, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। इंडिया लिव, ताली बजाओ, जोर से क्या कर रहे हैं? और उस
उस माँ से मैंने यही कहा कि अगर मेरा जन्म इस देश में होता है, तेरी जैसी माँ की कोख से हो, वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देना भारत माँ के लिए, जिससे बहुत कहीं पर भी, लिबिया में, लेबनान में, सीरिया में, इजराइल में, यूक्रेन में, हमारे जब बच्चे, भारत माँ के बच्चों को तकलीफ होती है, माँ पहुंच जाती है। और कोई देश नहीं चाहता, हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं। अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक किताब लिखी है, आवर टाइम हैज कम। भारत किस तरह से अपना स्थान पूरी दुनिया में बना रहा है, हमारा समय आ गया, आवर टाइम हैज कम। और जानते हैं सर, ये किताब सबसे ज्यादा कहां बिकती है? पाकिस्तान में। ये मेरा बहुत पर्सनल स्लाइड है, मैं आप बच्चों को यहाँ बता देता हूँ। बेटा मैं बहुत प्यार करता था, 22 साल का था, कैप्टन था पैराट्रूपर्स में, कारगिल में अमर हो गया। और वहां पर जहां वो गिरा था, 8 गोलियां छाती में लेकर, ही वाज लीडिंग अ डेथ चार्ज। आप तो जानते हैं डेथ चार्ज क्या होता है सर। वहां पर एक छोटा सा पत्थर है, भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है, उनके चरणों में मेरा नाम है और लिखा है, वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा मैं, इस माँ की गोद में सो जाऊंगा मैं, बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं। बहुत देर तक दूसरों ने हमारा भविष्य लिखा है, बहुत देर तक। 1924 में 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। कैसे हो गया मैम? 1 लाख ने 30 करोड़ पर हुकूमत की, क्योंकि हमारा आत्मविश्वास तोड़ दिया। हमें कह दिया था आप बेकार के हो, लेकिन अब हम एक वादा करते हैं, अब ये गलतियां हम नहीं करेंगे। अब हम लिखेंगे इस देश का भविष्य। कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। आप लिखोगे? फिर जोर से बोलो, हम लिखेंगे। बोलो। और एक वादा हम करते हैं, हम लिखेंगे इस देश का भविष्य। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई रुके। मैंने अपने कानों को हाथ लगाया कि भगवान से माफी मांगता हूँ कि आप दुनिया की तकदीर लिखते हैं, पर भारत के बारे में डोंट वरी, हमारे बच्चे इस देश की तकदीर लिखेंगे। Come on, clap! मैंने आपको सच्चाई बताई है, भगवान भी भारतीय है। अभी एक सवाल किसी ने पूछा था, मैं आपसे पूछता हूँ ये सुनने के बाद, हाउ इज द जोश? नहीं सुना? हाउ इज द जोश? भगवान भी भारतीय है, और ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। जानते हैं ये दिल क्यों मांगे मोर सर? थोड़ा वॉल्यूम तेज करिए सर, आप करिए वॉल्यूम मैक्सिमम पे करिए। ये दिल मांगे मोर क्योंकि, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 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 अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे खड़े होकर ताली बजाओ। अपने जीवन में आपके सामने चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस। लोग आपसे कहेंगे ये नहीं हो सकता, कोई रास्ता खड़े अनुभव आया थे मेरी फिलॉसफी उनको दीजिए, अरे यहाँ तो हम रास्ता ढूंढ लेंगे, नहीं तो रास्ता बना लेंगे। ये भारत की ताकत है। अब इनका फिर से वही क्या भी बने हैं। एक है ना जेड़ा ते हिंदी के कहंदे इंग्लिश के मैं लगे मतलब में क्वेश्चन आंसर करन लग गया देश से बैठ गया मैं। So, thank you sir, thank you Mr. Deepak Bora. As I told you कि एक जज्बा जो है एकदम से आप में जाग जाएगा। तुसी किथे जा रहे हो? तानी मिलेगी, बैठे रहो चुप करके।
Guys, wait for some time. It will take only hardly 5-10 minutes more. 10 मिनट में हम लोग उसको वाइंड अप कर रहे हैं. So जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो पर्पस है शेपिंग यंग माइंड शुरू करने का, that was inspiration 40 मिनट पूरे channelizing the thoughts and मजा भी आया. so I believe बाकी सारे वही what ऐसे के you have heard from Dr. Deepak Bora, Ambassador Deepak दिमाग Bora, उल्टा खराब कर your energies must have surely channelized. Is it okay? And your crowd is some जोश, the way जिस जोश में उन्होंने भाषण दिया उस जोश में वहाँ तो कर सकते हैं. Are you okay? Yes, sir. That is the spirit. That's really the spirit. So now there's a time for the question and answer session. I'll ask my panelists. We have the panel students from different institutions. We have Tarunesh, Tarush, Deepika, Sandeep. आपके पहले एक अनुरोध है, आप लोग सवाल पूछिए, हमारे चेयरमैन साहब जवाब देंगे. Okay. Bhavya, Gargi, Yash Sharma, and Yashika. All from different फोन walks ले of लें, life. चोरी ना हो जाए, मेरी बेटी का है. Yes sir, go ahead. Sir, करिए. बड़ी दिस Go ahead sir. Hello. Yes, sir. A very good afternoon to you, sir. Sir, first of all, I would like to thank you to be here with us today, and I am very grateful to you for sharing the wonderful insights. Sir, my question is, as we know, the world is grappling with the many geopolitical upheavals. Like we have seen the Russia-Ukraine war, the Israel-Palestine conflict, the change of the U.S. president. Sir, how would you like to say where does our nation, India, stands today in the evolving global image? आपने एक बुढ़िया का नाम सुना है, वो इस साल 80 साल की हो जाएगी, उसको कहते हैं यूनाइटेड नेशंस, डिसयूनाइटेड नेशन, बेवकूफ संस्था है वो, 80 साल की हो जाएगी. आपके घर में कोई 80 साल पुरानी चीज है जिसका आप प्रयोग करते हैं, बाहर भेज देते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं, इसको भी कबाड़ी वाले के हवाले कर दो, कंप्लीटली यूजलेस. जब मैं अपनी पत्नी को कहता था कि मुझसे शादी कर, फिर एक गाना गाया करता था उस जमाने का, इधर भी आग लगी है उधर भी आग लगी. हम दिल की बात कर रहे थे, आजकल तो पूरी दुनिया में आग लगी हुई है. 59 देशों में काइनेटिक वॉर चल रही है, एक दूसरे को ठोक रहे हैं. भारत की क्या रोल है? मध्यस्थता भारत करेगा. मध्यस्थता तभी होती है अगर सक्सेस की कोई पॉसिबिलिटी हो, नहीं तो हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं. यूक्रेन के साथ कोशिश की, रूस के साथ कोशिश की. वो यूक्रेन का जो सर्कस का जोकर है, क्या नाम है उसका, बेगिंस्की नहीं, वही ऐसे ही क्लाउन होता था ना सर्कस का जोकर. हाँ, तो वो नहीं चाहता. अब ट्रंप ने आज वो बयान दे दिया है कि पुतिन साहब से मैं बात कर रहा हूं, मैं मिलूंगा सऊदी अरेबिया में और वहां पर हम समझौता करेंगे. तो क्लाउन कह रहा है आप लोगों ने कहा था कि मैं तो जूलियस सीजर का बाप हूं, मैं नेपोलियन का बाप हूं. ट्रंप ने तो किसी ने बोला होगा जाके बाथरूम में बैठ जा, मेरी कोई नहीं सुनेगा. वो बड़ा परेशान है, शायद आज शाम को यहाँ कल तक खुदकुशी कर देगा. सारा देश तो अपना बर्बाद कर दिया, क्या मिला उसको. तो मेरा मानना है सर कि हमारा एग्जाम्पल यही होता है कि हर समस्या का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से मिले. दैट इज द रूल दैट यू राइट. और नहीं मानेंगे तो ठोकेंगे. नेक्स्ट. So my question is, what is your role as an officer on special duty to the technology advisor to the Prime Minister of India? My role when I was officer on special duty, my role was to open the door and close the door for my boss. हम लोग देखते थे, हमने वो कई मिशन लॉन्च की थी, आपको तो मालूम होगा सर. वो टेक्नोलॉजी मिशन हमने लॉन्च की थी, लिटरेसी मिशन किया था, ऑयल सीड मिशन किया था, ये किया था, वो किया था. वो चले नहीं चले वो अलग बात है, बट वी tried to introduce technology in our lives. विटोरा साहब के साथ काम करता था, उन्होंने किताब भी एक लिखी थी, Exploding Freedoms, how technology can change the world. और आपके सामने you have an outstanding example of how technology can change the world. ये मेरा काम है, कुछ खास नहीं था बेटा. I was singularly unsuccessful. Sir, my question is that how does an IAS officer deal with a diplomatic situation? You close your eyes and hope the problem will go away. ये थोड़ा बताऊंगा, पहले विदेश सेवा की सदस्य बनो, अपने आप सीख जाओगे. You just try and see common ground. हमारे पास एरिया ऑफ अग्रीमेंट क्या है और डिसएग्रीमेंट क्या है. एरिया ऑफ डिसएग्रीमेंट को आप बैक बर्नर पे रखें, एरिया ऑफ अग्रीमेंट पे डील करेगा. वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स इज 30 साल तक एरिट्रिया और इथियोपिया भिड़ रहे थे आपस में, कई हजार लोग मर गए थे ओवर अ स्मॉल पीस ऑफ टेरिटरी. एंड दे आर द सेम पीपल, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, द इथियोपियंस एंड द एरिट्रियंस. और फिर क्या होता है,
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथियोपिया जिनको मैं जानता हूँ, अबी अहमद, एक दिन वो अपने इरिट्रियन काउंटर पार्ट आइजायस अफरबकी को फोन करके कहते हैं हम क्यों लड़ रहे हैं, तो वो बोला मुझे क्या पता, 30 साल से हम एक दूसरे को ठोक रहे हैं, कहता बॉर्डर पे आ, ये बॉर्डर पे क्या वहां मिले भाई भाई कजन कजन, जब भी हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व। Now that I believe, I mean, they didn't do it like this. They were diplomatic efforts that went in. You can find a solution to any problem. ये हमारी परंपरा है, हम तो चाणक्य की संतान है, हर चीज में हम एक समाधान ढूंढ सकते हैं। ओके, ताली बेटा। Sir, I am not just asking you a question. I am just taking suggestions for today's youth from your life experiences. Suggestion दे रहे हो? मर गया। बोलो। Sir, I am taking your suggestions. Oh, very good. जाके ठोको दुश्मन को। बोलिए बेटा। Imagine you are इसे कहते हैं घोड़ा और इसे कहते हैं टाइगर। summit when let's suppose a diplomatic crisis arises. What else? Any kind of diplomatic crisis arises. हाँ. What are your first thoughts that come into your mind which helps you guide through that situation? I go back into India's ancient Vedic wisdom. कि भारत ने किस तरह से समाधान किया था। War was the last resort. महाभारत में भी महिला इन्वॉल्व थी, रामायण में भी महिला इन्वॉल्व थी। भगवान श्री कृष्ण दुनिया के टॉप डिप्लोमेट गए थे कहने के लिए महाभारत में कि भाई अब देखिए समझौता करें। उन्होंने कहा कि हम 5 नीडल पॉइंट ऑफ टेरिटरी भी आपको नहीं देंगे। तो ही वॉज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट डिप्लोमेट, पर लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी। फिर जंग हुआ, उसके बाद क्या हुआ आप लोग जानते हैं। सो आवर फर्स्ट एफर्ट इज टू फाइंड कॉमन ग्राउंड। और मेरे जीवन में कई बार नेगोशिएशंस में क्राइसिस आई हैं, वो क्लासिफाइड है बेटा, सो आई रादर नॉट टॉक अबाउट दैट, पब्लिक डोमेन में नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि गाली भी पड़ी है हमको, गाली हमने दी भी है, कई बार किसी ने डंडा भी फेंका, हमने जूता भी फेंका। सो थिंग्स tend to be complicated at times, but the only thing we represent Indian diplomats is the interest of India, और किसी का interest। अगर वो कहता है मागा कहता है ना, make America great again, तो हमने कहा कि you make America great again, but if you do it at the expense of India, तो बहुत ठोकेंगे तेरे को। So he said, all right, we'll make India great and we'll make America great again। मैंने कहा हुई ना गल, हाथ में लाते जब की बात। That's what we are talking about। हाँ बेटा बोलो। In next 5 to 10 years, where would you expect our country to be economically? In next 5 to 10 years? Yes. In the next 10 years, I expect India to be amongst the top 2 nations economically, the United States and India. ओए हम कर देंगे। मैं आंखें बंद करने से पहले ये देखना चाहता हूँ 2047 तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा सर। ना नरेंद्र मोदी, I don't know how long he lived, but I certainly won't live that long. तो जाने से पहले I want to, क्योंकि लौट के भी तो आऊंगा ना, then I want to see a developed India. फिर ऐसे ही शादी विवाह चढ़ा करेंगे, गोरे को बोलेंगे ओए मेरा बाथरूम साफ कर जा, तब मजा आएगा। Sir, my question is, how US President Donald Trump policies impacting US foreign aid? What are the global consequences of his actions? Nothing. वो फॉरेन एड कहता है कि मैं इतने सारे पैसे आपको देता रहा हूं, मुझे मिला क्या? वो तो धंधेबाज है भाई, ट्रांजैक्शनल मैन। खरीदारी की बात करता है। भारत सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का, अमेरिका के पास सबसे नंबर 1 टेक्नोलॉजी, मुझे वो चाहिए, उसको मैं मार्केट चाहिए। तो वो एड बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई एजेंसीज की उन्हें एड बंद कर दी है, वो सब कह रहे ओ दुनिया खत्म हो जाएगी, हो जाने दो यार, तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है। खासतौर से यूनाइटेड नेशंस, एक उसकी संस्था है, उसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, उसकी फंडिंग बंद करी। ओ जी दुनिया में बीमारी फैलेगी। और यार देख 80 साल से तो दुनिया में बीमारियां फैल रही हैं, तूने कुछ नहीं किया, अब इसने पैसे बंद कर दिए तो बीमारियां फैल जाएंगी। गाजा की भी सेम थिंग, 80 साल हो गए, कितना पैसा खर्च किया गाजा पे सोल्यूशन ढूंढने के लिए, 500 बिलियन में 9 शून्य हो गए, $500 बिलियन 80 साल में। हम वहीं के वहीं हैं, ना आगे गए ना पीछे गए। अब ये क्या कहता है कि मैं उसको इंटरनेशनल रिजॉर्ट बनाऊंगा, और सारे पैलेस्टीनियंस को बाहर निकाल दी, इसलिए किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन को बुलाया कि भाई तू उनको ले लेता है तो फिर वहाँ पे ये रिजॉर्ट बनाएगा। और अगर आप कभी अमेरिका जाएंगे, एक शहर है लास वेगस, वहाँ पे जितने कसिनो नाइट क्लब हैं वो दैट एरिया इज नोन कॉल्ड द स्ट्रिप, वहाँ पे बहुत होते हैं। किसी ने उसको बोला कि सर ये तो गाजा स्ट्रिप है, कहता मैं नाइट क्लब बना रहा हूँ यहाँ पे। This is a joke, it is not meant to be serious. That was McDonald Trump. सर कोई असर नहीं पड़ेगा, people will learn to deal. The biggest challenge I see in my career, I've served in the United Nations.
सर जब मैं साउथ सूडान में था मुझे बोला आप यूएन मिशन हेड करोगे, मैंने कहा जी बिल्कुल करूंगा। तो कहते 2 दिन के बाद जब आप स्टडी करिए बताइए क्या करोगे। 2 दिन के बाद उन्होंने फोन किया न्यूयॉर्क से कि व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग यू डू। आई सेड आई सैक 95% ऑफ योर स्टाफ। वो स्टाफ तो वहीं रहा, मुझे निकाल दिया लूटते हैं पैसा, यूजलेस ऑर्गेनाइजेशन। अभी Sir, my question is, can you share some most memorable experience from your posting in different countries? I would share only one. सूडान में था, हमारे कुछ ऑयल वर्कर्स को किडनैप कर लिया था आतंकियों ने, और नेचुरली पैसे चाहते हैं। सिंस आई स्पीक अरबिक, मैंने उनके साथ संपर्क किया। मैंने कहा ये बच्चे हैं 25-30 साल के, मेरी उम्र 55 साल की है, मुझे बंदी बना दो, इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा हम आपको बंदी बना देते, छोड़ देंगे, आपकी सरकार पैसे कितने देगी हमको। मैंने कहा 5 रुपए दे देंगे, शायद ज्यादा 10 दे देंगे, और क्या, भारत के राजदूत बहुत है। खैर वी मैनेज टू गेट देम आउट। कुछ मर गए उनमें से और कुछ हम बचा के ले आए। तो दिल्ली से फिर मेरे को एक मैसेज आया कि एम्बेसडर आपने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली, आपको ये नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा यार नहीं करूंगा, अगली बार नहीं करूंगा, इस बार बच्चों को बचाना था। तो मेरा जो बॉस था दिल्ली में, उसने एक मैसेज मुझे भेजा, क्लासिक, मेरी मिनिस्ट्री में अभी भी लोग बात करते हैं। उसने लिखा एम्बेसडर दीपक अब आने वाले तूफान से बचो। मैंने जवाब दिया सर मैं ही तो तूफान हूँ, मैं अपने आप से कैसे बचूंगा। हाँ जी दसो और कुछ। I think that's it. That's it? Oh, जल्दी हो गया। Thank you so much, sir. आइए सर प्लीज। ऊपर आओ के थले रहो यार, तुझे बहुत तंग करते बुढ़े आदमी हो। Sir, 23 years young with 50 years of experience. बैठ गए। तो जो भाई हुणी अपना हो चुका है अपना ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ। ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸ। मैं लिखे बता दूंगा मैं ब्लॉग से। ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਦੱਸ ਬਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਤਾਂ ਦੱਸ ਬਾਈ। अभी खत्म हुआ है हमारा सेमिनार एंड लास्ट वाला दी बेस्ट। लास्ट वाला बंदा भाई सच में ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਬਈ। ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ दिल से यंग रहते हो, दिल से यंग रहते हो। बचना हो हसीनो लो मैं आ गया। सही ਚ ਬਾਬੇ ਪਹਾੜਾਂ ਕੋਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਲਾਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਲਿਆ ਛੱਡ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਆਜੋ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਬੈਨਰ ਤੇ ਤਾਰ ਲੈ ਜਾਗੇ ਕਾਲਜ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। जानते ना खड़क जुआ देखिए क्या हो ना भाई। हम आते समय क्या हुआ कि ना एक सिक्योरिटी वाला मिला कि यार बोला कैमरे बंद करवा लो, फोन देख के उसकी फटके हाथ में आ गई। कैमरे बंद था बोला सी जिमें मतलब उसका मैंने पता नहीं लीक कर दिया वो। हाँ कुछ लीक कर लिया पर्सनल। आगे जाके बना लिया भाई वीडियो, अंदर जाके आगे बना लियो, आगे टाइम मिलेगा। अपने नाल क्वेश्चन सिखाया यार। क्वेश्चन किधर गया ਉਹ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਕਾਲਜ पेशेंट डेंटल कॉलेज। ਗੱਲ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। हमारी जिंदगी में तो क्या होता है कि हमारी घसड़ के चलना पड़ता है हमें। और तो भाई एक कोई हेल्प करने हाथ भी नहीं देता, हम लेते भी नहीं क्योंकि बाद में एहसान गिना देते हैं लोग। ओ भाई किसने गिनाया भाई। ओए यार वो कोई मैं पर्सनली बता नहीं रहा गिनवा देता, लेकिन करते हैं ऐसे। मैंने लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने हैं भाई। जितना हो सके हेल्प अवॉइड करो। बोलते ना जैसे कि उसने बताया कि इंडिया तो सबसे ज़्यादा दे रही है दूसरे कंट्रीज को हेल्प। सुना दिया बंदे ने, सुना दिया है ना। हाँ तो इसलिए हम हेल्प दे इंस्टेड ऑफ प्ले। ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ यार ਇਹਨੂੰ हर चीज भोर ਨਾਲ ਹੀ लगदी है यार। ਭੋਰ ਦੇ ਭਰਾ तू भोर चल तू भोर। ਭੋਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਘੈਂਟ ਬੰਦਾ ਭੋਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। तो वही अब क्या है, अभी यहाँ पर फोटो शूट होगा और फोन मेरा लिया जाएगा, मेरे को मालूम है। ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਨੌਲੇਜ ਬੀਕॉम ਸਿੰਪਲ ਮੇਰਾ ਨੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਨਰ ਫਲਕ ਤੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਏ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਕਿਤੇ जी जी ਨਹੀਂ ਬਸ अपनी बस बाहर आई शायद। तो भाई तेरे को कैसा लग रहा है, तेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मैडम ने।
वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने यहाँ पे रख दिया, मैं बस पे चढ़ने वाली हूँ। मैं मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर है। हाँ, ये कोच उठा रहा है। इधर आ वापस बोली, पहला वापस बोली। ओ नहीं अद्धा खा गया सी, अद्धा बोल गया सीगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा बोल रहे थे, मैडम मुझे खड़े हैं। तो भाई आज बस तुम्हारा भाई चलाएगा, ये देखो मैं चलाऊंगा यार। स्टीयरिंग सामने है, सीट यहाँ पर है, बस एक मौका चाहिए था। अपॉर्चुनिटी भाई सीट देती है तुमको, जो है एम्प्टी चेयर, जो अपॉर्चुनिटी है वो आपको मिलेगी। चला डायलॉग। हाँ कोई नहीं आज का दिन तो है, कल नहीं पता कर देंगे। 3 इडियट्स वाला डायलॉग है। सीट खाली थी, बस रेडी है, चाबी रेडी है, बस चलानी है। तो ड्राइवर साहब, तो यो गाइस ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ, ਨਵੇਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਐਡਵੈਂਚਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਵਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ, ਵਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ ਕਰ। ਕੀ ਭਾਈ ਸਸਤੇ ਕਾ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਲੌਗ 'ਚ। ਹਾਂ।